رومی سلطنت کی غلامی کے دور میں پہلے 400 برس خدا نے انبیاء کو نہیں بھیجا تھا۔ لوگ بھاری ٹیکسوں اور رومی غلامی سے تنگ آ گئے تھے۔ انہیں ایک مسیحا کی ضرورت تھی۔ لیکن کیوں؟ خدا نے ایک بچے کو بھیجا، ایک عظیم بادشاہ کو۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا۔ یسوع کو چرنی میں کیوں رکھا؟ کیسے دنیا بھر سے مجوسی یہودیوں کے بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے؟ آخر بیت الحم ہی کیوں؟ آسمان پر نظر آنے والا پراسرار ستارہ کیا تھا؟ کیوں ایک کنواری کو چنا گیا کہ وہ یسوع کی ماں بنے؟ کیسے آسمانی گروہ نے بادشاہ کی آمد پر حمد کی؟ کیا خدا کا بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ آئیں اس کرسمس کے پرمسرت موقع پر کرسمس کے اصل مقصد کو سمجھیں اور بائبل کے ماہرین کے ساتھ مل کر ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈیں، ازل سے ابد تک۔ مجوسی، وائز مین، علم نجوم کے ماہر، فالگیری اور خوابوں کی تعبیر میں خاص دسترس رکھنے والے، حکمت سے معمور، فلسفے کے ماہر، یہ ایسے لوگ تھے جو یہودی پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے علاوہ ستاروں کے اذکار سے بھی بخوبی واقف تھے۔ وہ ستارے کی رہنمائی میں یہودیوں کے پیدا ہونے والے بادشاہ کے دیدار کے لیے جا رہے تھے۔ ان کے پاس نومولود بادشاہ کے لیے تحائف بھی موجود تھے۔ یہ اپنے اپنے علاقوں سے ستارے کی رہنمائی میں سفر جاری کیے ہوئے تھے۔ شاید ابھی وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ستارہ انہیں کہاں لے کر جا رہا تھا۔ ستارہ ان کو یہودیہ کے شہر بیت الحم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بیت الحم ایک ایسا قصبہ ہے جو یروشلیم کے جنوب مغرب میں 5 میل پر واقع ہے، جس کی ڈھلان پر انجیر، انگور، بادام اور زیتون کثرت سے پیدا ہوتا تھا۔ اس علاقے پر اس وقت سلطنت روما کا راج تھا۔ رومی سلطنت دنیا کی طاقتور ترین سلطنت رہی ہے۔ اس سلطنت کا آغاز 31 قبل از مسیح میں ہوا اور یہ سلطنت 1453 تک جاری رہی۔ کیسر اگسطس کے زمانے میں یہ سلطنت برطانیہ سے عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ عہد جدید بتاتا ہے کہ کیسر اگسطس جو روم کا شہنشاہ تھا، اسم نویسی کا حکم جاری کرتا ہے۔ اس کا مقصد اول تو رومی سلطنت کے لیے ٹیکس وصولی میں اضافہ کرنا اور ثانیاً دنیا کو اپنے ماتحت علاقوں کا اثر و رسوخ دکھانا تھا۔ بمطابق شاہی اعلان، سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے آبائی علاقوں کو جاتے ہیں۔ ناصرت کے علاقے کی ایک لڑکی مریم جو حاملہ تھی، رومی شہنشاہ کے اعلان کے بعد اپنے منگیتر کے ساتھ بیت الحم کو جاتی ہے۔
اس کا شوہر یوسف ایک ایماندار اور راست باز شخص تھا۔ مریم ایک بتولہ تھی۔ اس کے بطن میں موجود بچہ معمولی نہیں تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ مریم جنسی ملاپ کے بغیر معجزانہ طور پر حاملہ ہوئی تھی۔ وہ گلیل کے شہر ناصرت میں رہتی تھی اور اس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک شخص یوسف کے ساتھ ہوئی تھی۔ کتاب مقدس میں رقم ہے کہ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ کنواری عورت کے انتخاب کے تعلق سے بائبل مقدس میں پہلے ہی تعلیم موجود تھی۔ یسوع مسیح کا کنواری سے پیدا ہونا کلام مقدس کے مطابق انتہائی ضروری تھا، کیونکہ یہ خدا کا پلان تھا، خدا کا منصوبہ تھا، اور خدا نے باغ عدن میں اس بات کو ریویل کر دیا تھا جب خدا نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ وہ عورت کی نسل ہوگا، اور اس کے بعد مسلسل اس بات کو بیان کیا جاتا رہا۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں ذکر ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی۔ یہ بھی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ بن باپ کے آنے والا تھا۔ مسیحی علم الہی کے مطابق 2 بنیادی وجوہات ہیں جس کے سبب یہ ہونا ضروری تھا۔ پہلا سبب یہ ہے کہ جب آدم نے گناہ کیا تو اس کا جو جرم ہے، یا ہم کہیں گے کہ اس کی جو کرپشن ہے جو اس کی فطرت میں شامل ہو گئی، بعد میں اس کی نسل میں بھی ٹرانسفر ہوئی۔ اس سے مراد اب یہ ہے کہ جو بھی آدم کی نسل سے پیدا ہوتا ہے وہ جرم کے ساتھ اور اس کرپشن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، فطرت کے بگاڑ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اب چونکہ یسوع مسیح کو ایک عوضی بننا تھا، اور اگر وہ آدم کے عام نسل سے پیدا ہوتے، عام طریقے سے پیدا ہوتے، تو پھر وہ بھی غضب کے نیچے ہوتے۔ ایسا اعتراض کیا جاتا ہے جی کہ وہاں پر یہ پیشگوئی میں تو کہا گیا کہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، لیکن پھر اس کا نام ایمینویل کیوں نہیں رکھا؟ نام جب رکھا گیا تو یسوع نام رکھا گیا، تو آخر ایسا کیوں ہے؟ ایمانویل، جس کا ترجمہ آپ سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ، گاڈ ود اس۔ عبرانی کے 3 لفظ، خدا ہمارے ساتھ، ایل نو ایم۔ خدا کی ایک بنیادی جو صفت ہے یا اس کا ایک فاؤنڈیشنل جو ایٹریبیوٹ ہے وہ کیا ہے؟ کہ خدا لامحدود ہے، وہ انفینٹ ہے، اور انفینٹ گاڈ جو ہے اس کو کبھی بھی بیان کلی طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس کے بائبل مقدس کے اندر بہت زیادہ نام دیکھتے ہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی خدا کے 99 نام ہیں۔ اب 99 کیا، 99 نام کیا، اس کے 99 لاکھ نام بھی رکھ دے تو تب بھی خدا کی لامحدود ذات کو پورے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم بائبل مقدس میں دیکھیں گے کہ خدا کا ذاتی نام، یعنی اس کا جو پرسنل نام ہے، شخصی نام ہے، وہ خدا تعالیٰ نے موسیٰ کی درخواست پر اس پر ظاہر کیا۔ جب اس نے اس سے درخواست کی کہ مجھے اپنا نام بتا، جب میں جا کر لوگوں کو بتاؤں تو میں کیا کہوں جب وہ پوچھیں گے، تو اپنا نام بتا۔ خدا نے کہا کہ میرا نام یہوہ ہے۔ ہم یسایہ نبی کے صحیفے میں چلے، وہاں دیکھیں حالات کیا تھے اور خدا کیا کہنا چاہتا ہے، اور خدا کے ناموں کے متعلق، یسوع مسیح کے نام جو دیے گئے ان کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ خدا کے صفاتی نام ہے، یسوع مسیح کے بھی صفاتی نام ہے۔ تو وہ نام جو یہودا کے قبیلے کا شیر ببر اور یہ سارے نام جو ہے میٹافر ہے، صفاتی نام ہے،
और इल्काबी नाम है, यानी यीशु के रूप में खुदा हमारे साथ। और यीशु मसीह ने फिर कहा कि दुनिया के आखिर तक देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो ये एक पैगाम था कि अब खुदा हमारे दरमियान आया है और वो इंसानों में इंसान बनकर आया है ताकि वो इंसानों के साथ रहे। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। इसी तरह से आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह का जो पर्सनल नाम है वो अब्रानी जुबान में यशुआ, या हमारी उर्दू जुबान उसके बहुत करीब से जाके कहती है यसू है। मरियम ने मुकालमे के दौरान फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती, जिसका मतलब था कि वो मासूम, बतूला और पाक है। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि मसीह इब्ने मरियम यानी यीशु मसीह जो औरत से पैदा हुआ है वो कैसे खुदा का बेटा हो सकता है, क्योंकि फरिश्ते ने बहुत वाज़े बता दिया था कि वो पाक मौलूद यानी इब्ने खुदा है। एक औरत से पैदा होने वाला खुदा का बेटा है, या इसको कई तरह से दूसरे तौर पर भी ये सवाल किया जा सकता है कि क्या कोई खुदा का बेटा है, खुदा का बेटा पैदा हो सकता है। औरत के ताल्लुक से तो पहले ही नबूवत कर दी गई थी। पैदाइश की किताब में यह कलमबंद था कि मैं तेरे दरमियान और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। और ये फर्स्ट प्रोटोवेंजिलियम इसको कहते हैं, यानी कि पहली खुशखबरी, पहली अच्छी खबर जो किताब मुकद्दस में दर्ज की गई थी। औरत की नस्ल से आने से मुराद ये है कि उसमें किसी शोहर का या किसी मर्द का अमल दखल नहीं होगा। एक जो बुनियादी मैं समझता हूँ कि गलती लोग करते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह को हम खुदा का बेटा या बाइबली बुनियादों पर उसको खुदा का बेटा कहते हैं, तो सामाईन या गैर मज़ाहब के लोग जो हैं वो अक्सर गलती क्या करते हैं, वो समझते हैं कि बेटा होने के लिए बीवी ज़रूरी है, और चूंकि खुदा की कोई बीवी नहीं इसलिए बेटा हो ही नहीं सकता। हम कभी भी मसीह खुदावंद को जिस्मानी खुदा का बेटा नहीं कहते, और किसी मुकाम पर ऐसा आपको दिखाई नहीं देता कि कहीं खुदा ताला और मुकद्दसा मरियम के जिनसी ताल्लुकात कायम होने की बुनियाद पर जो बेटा पैदा हुआ उसको हम कहें कि वो खुदा का बेटा है। ऐसा कहीं भी तासर मौजूद नहीं है, बल्कि ऐसी बात को रद्द करने के लिए ये कहा गया कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी और रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, ताकि ये वाज़े हो जाए कि मसीह की पैदाइश में किसी तरह का कोई जिनसी अमल दखल जो है वो कतई तौर पर मौजूद नहीं है। एक और बात जिसको ज़हन में रखना चाहिए कि क्या खुदा का बेटा हो सकता है, तो क्या प्रॉब्लम क्या आती है जी, खुदा की बीवी कोई नहीं। भाई अगर खुदा को भी बेटा हासिल करने के लिए बीवी ही चाहिए तो फिर खुदा और इंसान में तो कुछ फ़र्क ना बाकी रहा। खुदा कादर मुतलक है और उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लूका के इंजीली बयान में जब मसीह खुदावंद का नसब नामा दिया गया है तो फलां से फलां पैदा हुआ, फलां से फलां, फलां से फलां पैदा हुआ, एंड कहाँ पर जाकर होता है? आदम पर। और आदम के बारे में क्या लिखा है? और वो खुदा का, बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा रूह है, और उसका बेटा जब हम कहते हैं तो वो भी रूहानी बेटा है, जिस्मानी बेटा नहीं है। खुदा की विलादत तब नहीं हुई, खुदा की पैदाइश तब नहीं हुई। खुदा का ताल्लुक तो ज़माना कदीम से है, अज़ल से है। यहाँ पे खुदा जो है वो इंसान बनकर तजस्सुम लेकर ज़मीन पर आया। वो जो मखलूकात से पहले था वो हमारे लिए इंसान बन गया। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ है मौलूद, हमारे पास जो उर्दू तर्जमे में इस्तेमाल हुआ है, इसकी जो अंग्रेज़ी है आम तौर पर वो इनकारनेशन इस्तेमाल की जाती है और वो इसके दुरुस्त मीनिंग देती है। और इससे भी अगर बेहतर आप यूनानी ज़बान के मतन को देखें तो यूनानी ज़बान में इसके लिए कैटाबोले वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो कैटाबोले से मुराद है कि जिस्म इख्तियार करना, जिस तरह लिखा वो मुजस्सम हुआ, यानी जिस्म लेना।
pre-existed son of the God became a man. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے جسم لیا، انسان بنا تاکہ انسان کی مخلصی کے لیے قربان ہو سکے، نہ کہ خدا پیدا ہوا. کیونکہ جو جسم لیا وہ بالآخر مر گیا، وہ جسم صلیب پر قربان کر دیا گیا، لیکن الوہیت کا خاتمہ ممکن نہیں ہے. خدا جو ہے وہ گاڈ مین بنا. فرشتے نے مریم کو ایک اور خوشخبری بھی دی تھی، اور وہ عہد عتیق کے عظیم نبی ایلیا کے تعلق سے تھی، جو یوحنا استباغی کی صورت میں پیدا ہونے والا، جس کے تعلق سے مسیح خداوند نے فرمایا تھا کہ ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے. فرشتے نے مریم کو بتایا کہ دیکھ، تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کا جو بانجھ کہلاتی ہے 6واں مہینہ ہے. اور خدا نے مقدسہ مریم کو یہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ تیری رشتہ دار الشبا بھی حاملہ ہے. یہ اس کے لیے بھی ایک حیران کن بات تھی، اور وہ اس لیے ملنے گئی کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ خدا کا کیا پلان ہے. اب سوچئے کہ مقدسہ مریم جو تھی وہ ایک نوجوان لڑکی ہے، اور اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی، اور وہ کیسے دنیا کا سامنا کریں. انہیں کوئی ہمراز چاہیے، اور فرشتہ انہیں ایک راہ دکھاتا ہے کہ دیکھ، تو اکیلی نہیں ہے جس کے ساتھ معجزہ ہو رہا ہے. الشبا جو تھی وہ خود اس تجربے سے گزری تھی، تو بے شک وہ بہترین ہمدرد ہو سکتی تھی. وہ مقدسہ مریم کی بات کو سمجھ سکتی تھی اور بہتر طور پر ان کی رہنمائی کر سکتی تھی. جان دا بیپٹسٹ اپنے ماں کے بطن میں اچھل پڑتا ہے مقدسہ مریم کی آواز سن کے، تو الشبا اس کا اظہار بھی کرتی ہے کہ وہ اپنے خداوند کی ماں کی آواز کو سن کے خوشی سے اچھل پڑا. تو یہ بھی مقدسہ مریم کے لیے کنفرمیشن تھی کہ جو بات خدا نے کی ہے، خدا اس کو یہاں پہ کنفرم کر رہا ہے کہ میں خداوند کی ماں ہوں. ہاللیلویا. اور یہ بات بھی ایک یہاں بڑا اہم پہلو ہے کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح کی ماں ہے. لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی 76ویں آیت میں فرمایا ہے، کہا ہے کہ تو نبی ہوگا اور تو خداوند کی راہیں تیار کرے گا. اور یوحنا استباغی یوحنا رسول کی انجیل میں خود کہتا ہے کہ میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں. اور لوگ اس کو مانتے تھے، لوگ اس کی بات کو اکنالج کرتے تھے، اور اس کی بات کی ایک سے تھی، اور پوری بنی اسرائیل قوم اس کو جانتی تھی کہ خدا کی جانب سے آیا ہے. پھر اسی نے یسوع مسیح کو لوگوں سے انٹروڈیوس کروایا کہ یہ ہے خدا کا برا جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اس اتم خوشخبری کے بعد مریم کا رد عمل انتہائی عاجزانہ اور ایمان افروز تھا. اس نے فرشتے کو جواب دیا، دیکھ، میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. مریم حاملہ ہو چکی تھی. ادھر یوسف بھی تذبذب کا شکار تھا. کتاب مقدس اعلان کرتی ہے کہ یوسف ایک ایماندار شخص تھا. جب اس کو یہ خبر ملی کہ اس کی منگیتر حاملہ ہے تو اس کا رد عمل فطری اور مناسب تھا. اس نے سوچا کہ میں اس عورت یعنی مریم کو بدنام نہیں کروں گا، بلکہ چپکے سے چھوڑ دوں گا. وہ اسی کشمکش میں تھا کہ خداوند کے فرشتے نے خواب میں دکھائی دے کر اس سے کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یوسف منگیتر تھا یا شوہر. اگر منگیتر تھا تو مریم کو اس کی بیوی کیوں لکھا گیا؟ عرض مقدس میں، یہودی کلچر میں ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا. یہودی کلچر میں جب کسی عورت اور مرد کی منگنی ہو جاتی تھی تو وہ منگنی ہمارے ہاں نکاح کی طرح پکی منگنی ہوتی تھی. جیسے ہمارے کلچر میں جب نکاح ہو جاتا ہے دراصل وہ عورت اس کی بیوی ہی کہلاتی ہے. جس وقت لابن نے اپنی بیٹی کی منگنی کر دی تھی یعقوب کے ساتھ، تو وہ کمٹمنٹ جو یعقوب سے ہوئی تھی، اس کے بعد اس نے کہا کہ میری بیوی کو میرے ہاں لے آ، اور میں اپنی بیوی کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. اسی طرح متی کی انجیل میں
जब यूसुफ की मंगनी मरियम से हुई थी तो एक शहादत है जो फरिश्ते की तरफ से है। उसने ये फरमाया कि तू अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर। सो अंजील नवीस का मुकद्दसा मरियम को रास्तबाज यूसुफ की बीवी लिखना ये सकाफती एतबार से और हर एतबार से जायज़ है। यीशु मसीह के नसब नामे को मत्ती रसूल जब बयान करता है तो वो ये बयान करता है कि यीशु मसीह उस नस्ल से था जो याकूब का बेटा यूसुफ था। हालांकि वो रूह कुद्स से पैदा हुआ, लेकिन वो यूसुफ से पैदा नहीं हुआ, रूह कुद्स की कुदरत से वो पैदा हुआ था। लेकिन लूका रसूल इस बात को वाज़े करता है कि वो एली का बेटा था और एली मरियम का बाप था। जब हम एशियन कल्चर की बात करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि इस कल्चर में जो फादर इन लॉ या ससुर होता है उसको भी बाप ही समझा जाता है। सो तर्जमाकार ने उसको हाशिया में लिखा जैसा कि समझा जाता है। सो रास्तबाज यूसुफ खुदावंद यीशु मसीह का हकीकी बाप नहीं था। वो मैं बता रहा हूँ कि वो शरई और कानूनी बाप था। और जब हम रास्तबाज यूसुफ के नसब नामे का जिक्र पढ़ते हैं तो इन दोनों नसब नामों में सियालती एल एक मरकजी शख्स हमें नजर आता है। और सियालतीएल का हकीकी बाप जो था वो नीरी था, हकीकी बाप जिसको लूका तबीब ने बयान किया। लेकिन मत्ती रसूल ने सियालतीएल के बाप का नाम यकूनिया लिखा। ये बात इंतहाई अहम है। जब हम यिर्मयाह नबी की किताब उसके 22वें बाब को पढ़ते हैं तो खुदाए कदूस ने ये फरमाया कि यकूनिया को बे औलाद लिखो। इसलिए यकूनिया की असल औलाद का बाइबल मुकद्दस में जिक्र नहीं किया गया। यकूनिया का जो कानूनी वारिस ठहराया गया वो सियालतीएल को बनाया गया, चूँकि यकूनिया सुलेमान की नस्ल से था। सो यहाँ से उसके शजरा को जोड़ने का मतलब ये है कि ये साबित किया जा सके कि यीशु मसीह शाही नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। और दूसरी तरफ से सियालतीएल के बाप नीरी का नसबनामा शजरा जाकर जुड़ता है दाऊद के एक बेटे नातन से। और यहाँ से ये साबित किया जाना मकसूद था कि वो नस्ली तौर पर भी इब्ने दाऊद है। इसके अलावा एक और भी नजरिया है जिसकी तस्दीक मुकद्दस यूसुफस मोरख ने की थी। वो बताते हैं कि यूसुफ बायोलॉजिकली याकूब से ही पैदा हुआ था, और ये भी कि याकूब ने अपने भाई एली की, जो बे औलाद मर गया था, बेवा से शादी की थी। इस्तिस्ना 25वें बाब की 5वीं से 10वीं आयत के मुताबिक यहूदियों में भाई की बेवा से शादी को युबम या लिवरेट मैरिज कहा जाता है। ऐसी शादी में पैदा होने वाला पहला बच्चा मरहूम शख्स के नाम से कहलाता था ताकि उसका नाम बाकी रहे। इस केस में एस्था नामी एक खातून ने एली से शादी की थी और वो बे औलाद मर गया था। इसके बाद उसने उसके भाई याकूब से शादी की। इस एतबार से याकूब यूसुफ का हकीकी और बायोलॉजिकल बाप था, जबकि एली शरई और कानूनी बाप था। यूसुफ का ताल्लुक चूंकि दाऊद के घराने से था और दाऊद का ताल्लुक बैतलहम से था, इसलिए यूसुफ अपनी मगेतर मरियम को, जिसके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली थी, लेकर सफर पर रवाना हुआ। असल में किताब मुकद्दस में पहले से पेशनगोई कर दी गई थी कि मसीहा बैतलहम में पैदा होगा। लिखा है, लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मसदर ज़मानाए साबिक, हाँ, कदीमुल अयाम से है।
कोई शख्स भी, कितनी भी बड़ी कोई नामवर शख्सियत हो, उनके मर जाने के बाद उनकी स्वाने हयात, उनकी स्वाने उम्री जो है वो लिखी जाती है। लेकिन यीशु मसीह वो ज़ाते अक़दस हैं जिनके आने से पहले ही सब कुछ अहद अतीक यानी पुराने अहदनामा में सब कुछ लिखा जा चुका था। पैदाइश की किताब से शुरू करें और फिर उसकी जगह का बताया गया मीका नबी की पेशगोई में, और फिर हर एक हालात और चीज़ों को बताया गया। वो कहाँ पैदा होगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा। बैतलहम शहर जो है वो कदीम ज़माने से बहुत ही अहमियत का हामिल रहा है। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले अगर किसी से पूछा जाता कि मैंने बैतलहम जाना है, तो वो कहता कि कौन से बैतलहम आपने जाना है, क्योंकि 2 बैतलहम थे, बैतलहम ज़बूलून और बैतलहम इफ्राता। ये बीका 5वें बाब की 2री आयत में और यशवा 19वें बाब की 15वीं आयत में ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर आकर रूत की शादी बोएज से होती है, जिसकी नस्ल से चलकर फिर दाऊद बनी इसराइल का सबसे ज़्यादा बिलवड किंग है, वो आया। यसी का घराना यहाँ पर था। यहीं पर सैमुअल नबी जो है वो दाऊद बादशाह को मसा करने के लिए आया था। बैतलहम में सितारे का चमकना ये पेशगोई की तरफ इशारा था, जो गिनती 24 बाब की 17वीं आयत में कहेगी कि याकूब में से एक सितारा निकलेगा। सो खुदा यीशु मसीह जो सुबह का रोशन चमकता हुआ सितारा है, और एक सितारे ही ने मजूसियों की रहनुमाई खुदावंद यीशु मसीह तक की। बाइबल के जो उलमा हैं उनका ख्याल है कि नासरत से बैतलहम तक का 4 दिन का सफ़र है। इस लिहाज से नासरत से बैतलहम का सफ़र 90 माइल बनता है। जब हम इसके डिस्टेंस को देखते हैं, फासले को देखते हैं, तो वो तकरीबन 90 मील था, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत दूर था। लेकिन फिर भी क्यों जाना पड़ा उन्हें? इसकी 2 वजूहात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली तो पुराने अहदनामे की प्रोफेसी थी, उसको पूरा होना था। खुदावंद यीशु मसीह से 700 साल पहले मीका नबी ने मीका 5वें बाब की 2री आयत में पेशन गोई की थी। खुदावंद यीशु मसीह है वो बैतलहम में पैदा होगा। खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। और इसकी दूसरी वजह जब हम देखते हैं वो भी कलाम पाक में ही हमें मिलती है। और कैसर अगस्तस ने यह हुक्म सादर किया था कि मर्दमशुमारी की जाए, इसम नवीसी की जाए कि यूसुफ जो दाऊद की नस्ल में था और वो बैतलहम से ताल्लुक़ रखता था, उसे बैतलहम में जाना ज़रूर था। और उसने अपनी बीवी जो कि उस वक़्त मंगेतर थी उसको लिया और बैतलहम चले गए, और वहाँ पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई। अगरचे हालात के पेश नज़र यूसुफ और मरियम बैतलहम गए थे, ताहम एक बात वाज़ेह थी कि दर हकीकत अहद अतीक की नबूवतें अपने तकमीला को पहुंच रही थीं। मरियम और यूसुफ को ना किसी घर में जगह मिली और ना सराय में। उसकी बुनियादी वजह थी कि मर्दमशुमारी की वजह से बैतलहम में लोगों का हजूम था, लेकिन फिर भी इखलाकी तौर पर हामिला औरत को ज़रूर जगह देनी चाहिए थी। आखिरकार उनको ऐसी जगह ठिकाना मिला जिसको चरनी या अस्तबल कहा जाता है। मुकद्दस लूका अपने अंजीली बयान में यूँ फरमाता है कि यीशु मसीह को चरनी में इसलिए रखा गया कि सराय में उसके लिए जगह ना थी, और यसाया ने सैकड़ों साल पहले
यीशु के बारे में पेशन गोई कर दी थी कि उसका नाम अजीब होगा। लिहाजा ये जो अजीब होना है, तो इससे हमारी सोच इस तरफ जा सकती है कि चरनी में रखा जाना भी अजीब है। जब हम यीशु मसीह की पर्सनैलिटी यानी डिविनिटी को देखते हैं, तो इस लिहाज से यीशु मसीह की पर्सनैलिटी जो है वो सुपर हाई हमें नज़र आती है। और जब हम दूसरी तरफ यीशु को चरनी में पड़ा हुआ देखते हैं, एक छोटे बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ देखते हैं, तो हमें ये पोजीशन लोएस्ट सी नज़र आती है। दूसरी रीज़न जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि बैतलहम का जब हम मतलब लुग़वी मतलब लेते हैं तो इसका मतलब है रोटी का घर। और जब हम चरनी को देखते हैं तो चरनी वो जगह है जहाँ मवेशियों के लिए चारा या खाना होता। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने फरमाया कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। और जब हम चरनी को देखते हैं तो चरनी वो जगह है जहाँ भेड़ों के लिए रोटी या मवेशियों के लिए रोटी रखी जाती है। और ज़बूर नवीस कहता है कि हम उसकी चरागाह की भेड़ें और उसके लोग हैं। लिहाजा चरनी में रखा जाना एक दावत है कि अब सबके लिए, भेड़ों के लिए रोटी जो वो आम है। जब मसीह का तजस्सुम हुआ तो खुदा ने मुनासिब समझा कि ये खबर चरवाहों को भी दी जाए, और उस खास तरीके से जैसे मरियम और यूसुफ को दी गई। कलाम बयान करता है कि इसी इलाके में चरवाहे रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे कि खुदावंद का फरिश्ता उन पर ज़ाहिर हुआ और खुदा का जलाल उन पर चमका। उनका डरना यकीनन फितरी था, ताहम फरिश्ते ने उनको आलम की सबसे बड़ी खुशखबरी सुना दी और कहा कि डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उनको एक निशान भी दिया कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। खुदा ने फरिश्ते को पैगाम देने के लिए भेजा और उस तबके के पास पैगाम देने के लिए भेजा जिसको लोग कमतर, कमज़ोर या सादा लोग समझते हैं। इसराइल में पहलोठा जो जानवर का होता था वो खुदावंद के लिए मखसूस होता था। तो क्योंकि ये चरवाहे थे और ये इसराइली चरवाहे थे और इनके पास भेड़ें होती थीं और भेड़ों के पलोठे इनके पास जब आते थे तो उनको कपड़े में लपेटकर अलग कर लिया करते थे, क्योंकि ये पलोठा ये खुदावंद के हुज़ूर कुर्बान किया जाएगा, वो कुर्बानी के लिए उसको अलग कर देते थे। सो फरिश्तों का ये मैसेज गडरियों को समझ आ रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। उनको समझ आ रही थी कि ये कपड़े में लिपटा हुआ कहा जा रहा है, इट मीन्स कि ये वो कुर्बानी है जो इंसान बनकर ज़मीन पर आई है, हमारे लिए कुर्बान होने के लिए मसीह आया है। जो ही फरिश्ते ने मुनज्जी की खुशखबरी गडरियों को सुनाई तो यकायक एक आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्दो तारीफ में महव दिखाई दी। एक रूमी फौजी दस्ते को लश्कर या लीजन कहा जाता था, जिसकी तादाद अमूमी इतबार से 3000 से 6000 हुआ करती थी। फरिश्ते सदियों से खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। स्कॉलर्स हैं वो ये बताते हैं कि फरिश्तों की 3 इकसाम है, जंगजू फरिश्ते, पैगाम रसां फरिश्ते और खुसूसी तौर पर खुदा की प्रस्तिश के लिए अपॉइंट किए गए फरिश्ते जो हर वक्त खुदावंद की हुज़ूरी में रहते हैं और उसे कुदूस 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 कहते हैं। जब हम यसाया की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें फरिश्तों की हम्दो सताइश नज़र आती है और वहाँ पर सराफीम जो 6 परों वाले फरिश्ते हमें नज़र आते हैं, खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे हैं और वहाँ पर वो ये कह रहे हैं, एक वहाँ लिखा है, एक ने दूसरे से कहा कि कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। और आज वही मसीह, वो खुदा का कलाम जो अज़ली कलाम है, वो कलाम जो खुदा है, जब वो इंसान बनकर आया है तो उनका क्या लेवल है जज्बात का, क्योंकि वो जानते हैं कि हुआ क्या है
اور فرشتوں کی پرستش میں صلح کا پیغام بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے جو گھرانے تھے وہاں پر جب بھی کوئی بیٹا پیدا ہوتا تھا تو لوگ بہت خوشی منایا کرتے تھے، گانے والے اور گانے والیوں کو بلاتے تھے، جشن کرتے تھے، اور چونکہ یہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے تو خدا بھی جشن منا رہا ہے، اوپر سے پھر آسمانی گانے والے اترے ہیں، لشکر فرشتوں کے اترے ہیں، روشنیاں ہیں، سنگنگ ہے، خدا کی حمد و ثنا ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسی کوائر تھی جو واحد آسمانی کوائر تھی جس کو چرواہوں نے دیکھا، انسانوں نے دیکھا، فزیکلی اس کو دیکھا۔ یہ روحانی کوائر تھی۔ اچانک یہ کام ہوا اور اس فرشتے کے ساتھ ایک بہت بڑا اموا گروہ آ گیا اور انہوں نے یہ گیت گایا۔ اب اس گیت کے چند الفاظ چرواہوں کو یاد رہ گئے۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ گیت پورا گایا، انہوں نے پورا سنا اور یاد رہے یہ آسمانی کوائر تھی، یہ موسیقی کے سازوں کے بغیر نہیں تھی، اور یہ خوبصورت کوائر کو چرواہے خوش قسمت تھے جنہوں نے یہ بات سنی۔ یہ پیغام جب ان تک پہنچا تو انہوں نے اس خوشخبری کو لے کر رکے رہنے کو مناسب نہ جانا، وہ پڑھے اور جا کر انہوں نے اس بچے کا نظارہ کیا، اس کو سجدہ کیا۔ کیرل پارٹیز مسیحی گھروں میں جایا کرتی تھیں، وہ اسی کی نقل تھی، کیونکہ چرواہوں نے یہ گیت گا کر گھر گھر منادی کی اور خوشخبری دی کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہو چکا۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ کئی مجوسی مشرق سے سفر کرتے ہوئے ستارے کی رہنمائی میں بیت لحم پہنچے۔ اپاکریفا کی تاریخی کتب بتاتی ہیں کہ ان کی تعداد 12 تھی، تاہم 3 ایسے مجوسیوں کا کتاب مقدس میں ذکر ہے جو تحائف لائے تھے۔ آرمینین روایت ہے کہ ان میں کیسپر ہندوستان سے تھا جو لبان لایا تھا، اور بیلشزر عرب سے تھا جو مر لایا تھا، اور ملکیار فارس سے تھا جو سونا لایا تھا۔ فارسی لفظ ماگوس ہے جو بعد میں گریک میں ٹرانسفر ہوا، اور یہ قدیم ابتدائی مادیوں میں سے تھے، اور ان کا کام علم نجوم یعنی ماہر فلکیات بھی تھے یہ، اور جادوگری بھی کرتے تھے، اور اس میں یہ پوری مہارت رکھتے تھے۔ متی کی انجیل میں یہ مینشنڈ ہے کہ مجوسی جو ہیں وہ ایسٹ سے آئے تھے، تو ایسٹ میں جو ہے وہ آپ کے پاس مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں، جیسے کہ میسوپوٹیمیا جو کہ آج کا عراق ہے، اور بیبلون، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو لوگ تھے یہ اسٹرانومی میں ان کا بڑا عمل دخل تھا۔ جب شاہ فارس خورس نے مادیوں کو اپنے مطیع کیا تو مجوسیوں نے پارسی مذہب اختیار کر لیا۔ ان کو پارسی مذہب میں کہانت کا درجہ بھی دیا گیا تھا۔ اس وقت کے دور میں سٹارز کا نالج رکھنا جو ہے وہ ہر ایک گورنمنٹ کی یا ہر ایک حکومت کی ایک سب سے بڑی جو ہے وہ فیلڈ ہوا کرتی تھی۔ ولادت مسیح کے موقع پر بادشاہ ہیرودیس کا رد عمل بہت شدید تھا۔ مجوسی جو ستارے کی رہنمائی میں آ رہے تھے، ستارہ آ کر بیت لحم کے اوپر رک گیا۔ مجوسیوں کو چونکہ مقامی علاقے کی اتنی خبر نہیں تھی، اس لیے وہ مطلوبہ مقام پر جانے اور مسیحا سے ملنے کی جگہ کو تلاش کرتے ہوئے یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے پاس پہنچے۔ مجوسیوں نے جیسے ہی مسیحا کی خبر ہیرودیس کو دی تو وہ گھبرا گیا۔ جب ہم علم فلکیات کی بات کرتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، تو ہمیں قدرتی طور پر بائبل کی آیت یاد ہونی چاہیے جو پیدائش پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت ہے۔ خدا نے ان ساری فلکیات کو
निशानों, ज़मानों, परसों के इम्तियाज़ के लिए बनाया। जब मजूसी हेरोदीस के पास गए तो उन्होंने कहा पूरब में हम उसका सितारा देखकर यहाँ आए हैं, और यकीनन वो यरूशलेम में इसलिए आए थे क्योंकि उस वक्त यरूशलेम दारुल खिलाफा था, और मजूसियों के साथ और कुछ सैकड़ों लोग भी कहा जाता है। विलियम बार्कले ये कहता है कि उसके साथ सैकड़ों लोग भी वहाँ मौजूद। बादशाहों की पैदाइश पर इल्म नजूम के माहिर ये समझते थे कि सितारे जो हैं वो ऐसे सितारे ज़ाहिर हुआ करते थे, तो वो सितारा जो है वाज़े तौर पर अंजीली बयान ये ज़ाहिर करते हैं कि मजूसी उस बादशाही को सिजदा करने के लिए आए थे। हेरोदीस जो था वो अदूमी नस्ल से था, और हेरोदीस 36 साल की उम्र में बादशाह बना, और उसने 22 साल हुकूमत की, और तकरीबन 68 ईयर्स का 68 बरस का जब वो था तो उस वक्त मजूसी यरूशलेम में ये कहते हुए दाखिल हुए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है। सो ये बात हेरोदिस बादशाह के लिए बड़ी दर्दनाक थी, खौफनाक थी कि वो जो खुद तख्त पर बैठा हुआ है और उसको एक न्यूज़ दी जा रही है कि एक बादशाह पैदा हुआ है, तो वो इस बात को बर्दाश्त ना कर सका, और सबसे पहले उसने जो सदर अदालत के 71 लोग थे सनहेड्रन के, वो बुलाए, और उसने सबसे पहला सवाल जो उन लोगों से किया वो ये था कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। इसका मतलब था कि सारे यहूदी लोग और हेरोदीस बादशाह भी इस बात का मुंतज़िर था कि मसीह ने पैदा होना है। और फिर देखें जितने भी बाइबल मुकद्दस के आलिम थे उन्होंने ठक से ज़बरदस्त जवाब दिया। मीका 5वें बाब की दूसरी आयत कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, ठीक है, तुझ में से एक सरदार निकलेगा। हेरोदिस आज़म के नाम से भी जाना जाता है। ये रोमी सूबा जो यहूदिया का सूबा कहलाता था उसका ये बादशाह था। हेरोदिस जो है वो 73 कहा जाता है कि 73 BC यानी कबल अज़ मसीह में पैदा हुआ। उसका बाप एंटिपटर जो था वो एक सरकारी ऑफिसर था। उसको नवाजने के लिए फिर जो कैसर था उसने हेरोदिस को यहूदिया के इलाके पर बादशाह मुकर्रर किया। इस सौ की नस्ल या अदूम की नस्ल से ताल्लुक़ रखता था, और इसकी माँ एक अरब औरत थी। यहूदी जो है उनमें नस्ल माँ से चलती है, मैट्रीलिनियल उसको कहते हैं, तो माँ से नस्ल चलती है। अब चूंकि इसकी माँ जो है वो यहूदी नहीं थी, इसलिए ये शख्स यहूदी नहीं था, और यहूदियों का इसको बादशाह मुकर्रर कर दिया गया। ये अदूमी था, तो यहूदी इससे कोई ज़्यादा खुश नहीं होते थे, इससे नफरत करते थे। काम भी बड़े ज़बरदस्त किए, इसने बहुत सी बिल्डिंग्स बनवाई, और उसमें खुसूसियत के साथ एक जो बड़ा कारनामा था वो क्या था कि 586 कबल अज़ मसीह में बाबलियों ने जिस हैकल को बर्बाद कर दिया था, इसने उसकी दोबारा तामीर जो थी वो की। बहुत जालमाना मिजाज था इसका। यहूदियों के साथ एक्सेप्टेबिलिटी पैदा करने के लिए इसने काहिन की बेटी से शादी की, उससे इसके बच्चे भी हुए, और आखिरकार इसने उस काहिन की बेटी जो इसकी बीवी थी उसको और उसके 2 बेटों को भी फिर कत्ल भी करवा दिया। हम देखते हैं कि जब खुदा ने अपने बेटे को तोहफे की सूरत में बख्शा तो उसने ये खबर अजराम फलक की वसीले से मजूसियों तक भी पहुंचाई जो साहिब इल्म थे। जब उन तक ये खबर पहुंची तो वो तहाइफ तैयार करके उस बादशाह के पास पहुंचे जिसकी खबर उन्हें मिली। उन्होंने उस बादशाह के हुजूर में तहाइफ पेश किए, और राह चलते हुए ना जाने कितने लोगों के साथ उस सितारे के बारे में उन्होंने जिक्र किया, और इस तरह से वो उस खुशखबरी को भी फैलाते चले गए। और मजूसी सितारा देखकर चल पड़े, और एक सफ़र तय करके मजूसी जब उस जगह पहुंचे जहां पर वो बच्चा था, तो लिखा है कि उन्होंने अपने डिब्बे खोलकर सोना, मुर और लबान उसको पेश किया। और ये सोना, मुर, लबान पेश किया जाना यीशु की पर्सनैलिटी को और यीशु के प्लान को जो यीशु ने सरंजाम देना है ज़मीन पर,
उसको जाहिर करता है। मजूसियों ने उसको सोना पेश किया। सोना पेश करके मजूसियों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि यीशु मसीह बादशाह है। सोना जो है वो धातों में से एक बहुत कीमती धातु है, जिसे धातों का बादशाह भी कहा जाता है। लेकिन रूहानी मायनों में सोना अलूहियत और उसकी खुदाइयत और रुबानियत को बयान करता है। और जब हम लुबान की बात करते हैं तो खरूज 30 बाब में जब खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि तूने खुशबूदार चीज़ें बनानी हैं और वो चीज़ें उस जगह पर रखनी हैं अहद के संदूक के पास जहाँ पर मैं तुझे मिला करूँगा। जब मजूसियों ने लुबान पेश किया तो वो वर्शिप के तौर पर पेश किया और ये इस बात की इलामत है कि वो माबूद है। और वही बादशाह और काहिन और दुनिया का निजात दहिंदा। मोर किस बात को जाहिर करता है? मोर ये भी मसालों में, खुशबूदार चीज़ों में लाजमी जुज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और मोर से जो मसाले बनाए जाते थे वो दफन से पहले डेड बॉडी पर मले जाते थे। और हम इस बात को यूं ले सकते हैं कि मोर का पेश किया जाना इस बात की इलामत है कि यीशु मसीह ने कफारे की मौत को कबूल करना है या कफारे की मौत मरना है। और उन तहाइफ के वसीले से वो उसकी अलूहियत, उसकी कहानत और उसकी मौत जो इंसान के लिए एक तोहफा और फिर जी उठना एक अजीम तोहफा था, उसका जिक्र करते गए। हेरोदीस जो तख्त पर विराजमान था और वो जो एक खुद गर्जी थी और वो नहीं चाहता था कि कोई उसका तख्त छीन ले या उसके तख्त की जगह पर कोई और बादशाह बैठ जाए। सो उसने मजूसियों से कहा कि मुझे इत्ला देना, ख़बर देना ताकि मैं भी उसे सिजदा करूं। ये इसके पीछे उसकी रियाकारी थी क्योंकि वो यीशु मसीह को मरवाना चाहता था, कत्ल करना चाहता था। और उसका ये भयानक मंसूबा हम पर ज़ाहिर हो गया जब उसने 2 बरस या उससे कम उम्र के बच्चों को कत्ल करवा दिया। उसने यीशु मसीह को मारने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह जो खुदा के मंसूबे के तहत इस दुनिया में आया था। और ये बात हमारे लिए भी पैगाम है कि खुदा का जो मंसूबा है, खुदा का जो प्रोग्राम है, वो हमेशा गालिब आता है और कोई हेरोदीस खुदा के मंसूबे को पूरा होने से कभी भी रोक नहीं सकता। जो मजूसी मसीह को सजदा करने और तहाइफ देने बैतलहम की चरनी में पहुंचे थे, ये सितारे की रहनुमाई में आए थे। ये एक इंतहाई दिलचस्प पहलू है कि कैसे एक सितारा मुख्तलिफ लोगों को रहनुमाई करता हुआ उनको एक मकाम पर ले आए। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश पे नमूदार होने वाले सितारे के बारे में हम पूरी तरह नहीं जान पाए कि वो क्या था, लेकिन उसके बारे में 6 थीरीज जो हैं वो उनके ऊपर हम गौर कर सकते हैं। सबसे पहले सुपरनोवा। सुपरनोवा बेसिकली डाइंग स्टार को कहते हैं, और जब स्टार अपनी मौत मरता है तो वो एक बहुत ब्राइट रोशनी के साथ यूनिवर्स में काफ़ी देर तक नज़र आता है। दूसरे कैंडिडेट की तरफ चलते हैं तो वो है कंजंक्शन। 7 BC में जुपिटर और सैटर्न का 3 दफ़ा कंजंक्शन है एक ही महीने के अंदर। जूसियों के लिए यकीनन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि कंजंक्शंस तो होते रहते हैं, लेकिन 3 एक साथ होना यकीनन एक बहुत ही रेयर चीज़ है। तीसरा हमारा जो कैंडिडेट है इसमें वो है हलाइकल स्टार। हलाइकल स्टार जो है वो साल में एक दफ़ा नज़र आता है। स्टार्स जो हैं वो सूरज के जब पीछे होते हैं तो डेफिनेटली वो हमें नज़र नहीं आते। हलाइकल स्टार की बहुत ज़्यादा अहमियत थी पुराने वक्तों में। अरब्स इसको अभी भी सादुल मलिक के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है स्टार ऑफ द किंग। नेक्स्ट हमारे पास कैंडिडेट जो है वो है मीटियोर। मीटियोर जो है वो आपको अक्सर ये भी नज़र आते हैं आसमान में। बहुत ज़्यादा भी अगर हो तो भी कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं है कि एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दें। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो है कॉमेट का। कॉमेट्स जो हैं वो लेफ़्ट ओवर्स होते हैं, फ्रोज़न लेफ़्ट ओवर्स होते हैं स्टार्स के,
اور ہمیں ویسے نظر نہیں آتے ہیں، لیکن جب وہ ٹریول کرتے ہوئے سورج کی طرف جاتے ہیں اس وقت ان کے سورج کے بالکل اپوزٹ گیسز اور آئس جو ہے وہ میلٹ ہو کے تو ایک اس کی ٹیل بناتی ہے. عام طور پہ جو کامنٹس ہیں ان کو ہم ایز اے اومن بھی لیتے ہیں. سم ٹائم بادشاہوں کے لیے برا شگون ہوتا ہے اور کئی دفعہ اچھا شگون بھی ہوتا ہے. 11 قبل از مسیح میں کومٹ نظر آیا. 7 قبل از مسیح میں روشن ستاروں کا ایک جھرمٹ نظر آیا. 5 اور 2 قبل از مسیح میں ایک اور ایسا ستارہ نظر آیا جو بڑا روشن تھا. تو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہے نووا. نووا بیسیکلی اسمال ویری اسمال سپر نوواز کی طرح ہوتا ہے لیکن ذرا تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ بائنری سٹارز ہوتے ہیں. اور ہوتا یہ کہ 1-2 سٹارز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ ایک سٹار کے اوپر سے مٹیریل جو ہے وہ دوسرے سٹار کے اوپر جو ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے گرد چکر لگانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اوپر گرنا شروع کر دیتا ہے. تو نووا جو ہے سنس وہ ایک بہت بڑا ایک روشنی پروڈیوس کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی مس کیا جانا جو مشکل ہے. کومٹ ایک پاورفل کینڈیڈیٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس کے پیچھے ہمیں ایک ٹیل نظر آ رہی ہوتی ہے جو اور یہ آپ کو 2-3 دفعہ بھی نظر آ سکتا ہے. جیسے کہ مجوسیوں کو پہلے جو ہے وہ ستارے نے یروشلم تک گائیڈ کیا اور اس کے بعد پھر بیتھ لحم تک گائیڈ کیا. سو اس کی جو ٹیل ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اگینسٹ دا سن رہتی ہے تو وہ ایک ڈائریکشن کو شو کر رہی ہے. تو ہم اس کو نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ یقیناً وہ کومٹ ہی تھا. کرسمس دنیا کا سب سے بڑا تہوار ہے تو ضرور ہے کہ لفظ کرسمس کے تعلق سے بھی بات کی جائے. کرسمس دراصل 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، کرائسٹ اور ماس. کرائسٹ کا مطلب مسیح، ماس کا مطلب عبادت، یعنی کہ مسیح کی عبادت کرتے ہوئے ہمیں کرسمس منانا چاہیے. اکثر نقاد یہ بھی کہتے ہیں کہ ایکسمس یعنی کرسمس کی شارٹ فارم استعمال نہیں کرنی چاہیے. تو اس کے تعلق سے 2 اہم باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں نقاد ایسا کہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پہلی بات جو یہاں پہ لفظ ایکس ہے یہ انگریزی کے ایکس کے میننگ دیتا ہے ای ایکس کے، جس سے مراد یہ ہے کہ ختم ہو جانا یا ود آؤٹ یا نو. اور دوسرا ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایکس ہے یہ میتھمیٹکس کے میننگز دیتا ہے جس کا مطلب ان نون ویلیو یا نمبر کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے. اور یونانی میں مسیح کو چونکہ کرسٹوس کہتے ہیں اس لیے کرسٹوس کا شارٹ فارم یہاں پہ ایکسمس میں استعمال کیا جاتا ہے. اور ماس آگے جو لکھا گیا ہے یہ لاطینی ورڈ ہے اور اس سے مراد ہے یوکرسٹ، وہ ماس یا وہ میز کھانے کی جو مسیح نے اپنے لوگوں کو دی تھی اور کہا تھا یہ میرا بدن اور خون تمہارے لیے ہے. یوں اس کا مطلب ہے کہ مسیح کے بدن کا پیش کیا جانا. یوں تو کرسمس کا آغاز تجسم المسیح کے ساتھ ہی ہو گیا تھا. اس مولود کی ولادت کے تعلق سے کتاب مقدس کرسمس کی پیشن گوئیوں اور مناظر سے بھری پڑی ہے. تاہم کرسمس کو ابتدائی 3 صدیوں میں تہوار کا درجہ نہیں دیا گیا تھا. پہلی 3 صدیاں تو یہ سیلیبریٹ ہوا ہی نہیں. اس کی 2 ریزنز تھیں. نمبر 1، اس وقت جو مسیحیوں کے سرکمسٹانسز تھے ان کے اوپر جو اعزارثانی تھی، مشکلات تھیں، اس قدر زیادہ تھیں کہ وہ تو بچتے پھرتے رہے اور دنیا میں بھاگتے رہے. سب سے پہلا کرسمس جو ہے وہ روم کے کنورٹڈ بادشاہ، جو پہلا کنورٹڈ یعنی مسیحی بادشاہ تھا، کانسٹنٹائن دا گریٹ، اس نے 336 میں سیلیبریٹ کیا. ہر سال 25 دسمبر کو دنیا بھر میں یسوع مسیح کی پیدائش کے دن کے طور پر بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ پہلا کرسمس کب منایا گیا اور مختلف کلیسیاؤں میں متفرق ایام کیوں مقرر ہیں. 25 دسمبر کو منانے کا سبب یہ ہے، یہ کسی سورج دیوتا، سن گاڈ، متھرا، تموز یا کسی اور کی پیدائش والے دن کا نہیں. ہاں، ہم اس کو ضرور یہ دیکھ سکتے ہیں
کہ چونکہ مسیحیت جو ہے وہ پھیلی ہی بت پرستوں میں ہے، تو بت پرست پہلے اپنے دیوی دیوتاؤں کے وہ جشن مناتے تھے، انہوں نے دن مقرر کیے ہوئے تھے. تو جب مسیحیت کا زور ہوا تو آف کورس وہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہوتے گئے، اور مسیح خداوند کی پیدائش یعنی کرسمس کا دن، اور پھر مسیح خداوند کی مصلوبیت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے جو ایام تھے ان کو منایا جانا ان مسیحوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ پاپولر ہوتا چلا گیا. سیکسٹس جولیس افریکانس ایک کرسچن ہسٹورین تھا، اور یہ اس وقت کے مشہور تاریخ دان یوسیفس کا ساتھی تھا. اکٹھے مل کے یہ کام کرتے رہے اور ان کی تاریخ کو بڑا مستند مانا جاتا ہے. اس شخص نے سیکسٹس نے یہ بتایا کہ 25 مارچ تھا ہمارے حساب سے، 25 مارچ تھا جب فرشتہ میسج لے کر مقدسہ مریم کے پاس آیا. پھر کیلکولیشن کر کے 9 ماہ بعد 25 دسمبر بنتا ہے. پوپ جولیس ون اس نے 25 دسمبر کو سرکاری طور پر 4تھی صدی میں اعلان کیا یہ کہ مسیح خداوند کی یوم پیدائش 25 دسمبر کو منایا جایا کرے گا. مختلف اور تواریخ سامنے آتی ہیں جن پہ یہ دن منایا جاتا ہے. مثال کے طور پر آرتھوڈوکس کلیسیاں جو سربیا، یروشلم، رشیا، یوکرین وغیرہ میں ہیں، یہ ساری کلیسیاں 7 جنوری کو کرسمس سیلیبریٹ کرتی ہیں، اور کچھ یونانی آرتھوڈوکس جو ہیں وہ بھی 7 جنوری کو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تاہم چرچ کا ایک بڑا نمبر جو ہے وہ 25 دسمبر کو ہی اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے. 325 مسیحی میں جو کونسل ایکومینیکل کونسل جو تھی وہ کلیسیاؤں کی ہوئی، تو اس میں ایک بڑا ایجنڈا یہ تھا کہ مقدس جو تہوار تھے ان کے لیے دن مقرر کیے جائیں. تو یہاں پہ ان کو ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ وہ کون سا ایسا دن ہوگا جو سب سے زیادہ سوٹیبل ہوگا مسیح کی پیدائش کے تعلق سے، مسیح کے تجسم کے تعلق سے. پہلی بات یہ تھی کہ ان لوگوں کو تھوڑی سی کنفیوژن تھی، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو آج کا ہمارا کیلنڈر ہے یہ استعمال نہیں ہوتا تھا. اس کیلنڈر کو گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں، لیکن اس وقت جولین کیلنڈر استعمال ہوتا. یہ جو جولین کیلنڈر ہے یہ سولر سسٹم پر بیسڈ ہے. اب کوئی لونر کیلنڈر ہوتے ہیں، کوئی سولر کیلنڈر ہوتے ہیں دنیا میں. پرابلم کیونکہ یہ سولر کیلنڈر تھا یہ تھا کہ یہ ہر سال 11 منٹ زیادہ اس میں اضافہ ہو جاتا تھا. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ آہستہ 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 یہ جو لونر کیلنڈر ہے اس سے یہ دور ہوتا گیا، اور اس کا اور اس کے ایام میں فرق آتا گیا. 1582 تک جب ہم پہنچتے ہیں تو پھر پوپ جو گریگری تھا وہ بہت فکر مند ہو گیا کہ یہ اس میں دونوں میں فرق آتا جا رہا ہے. تو اس نے ایک نیا کیلنڈر اس مسئلے کو فکس کرنے کے لیے انٹروڈیوس کروایا جس کو گریگورین کیلنڈر کے نام سے جانا جاتا ہے. آرتھوڈاکس چرچ ہے اور جو رومن کرسچینٹی ہے 1054 عیسوی میں ایک ان کے درمیان جو تھی وہ پھوٹ پڑ گئی، جدائی ہو گئی. تو جب انہوں نے گریگورین کیلنڈر کو نافذ کیا رومن کیتھولک چرچ نے، تو جو آرتھوڈاکس تھے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور وہ جولین کیلنڈر جو تھا اسی کو انہوں نے جاری و ساری رکھا. 1923 تک جب ہم آتے ہیں تو چونکہ وہ سولر کیلنڈر تھا جولین کیلنڈر، چلتے چلتے وہ اتنا اضافہ ہو گیا کہ تب تک 13 دن جو تھے ان کا اضافہ ہو گیا. اور جب آپ 25 دسمبر سے 13 دن ایڈ کر دیتے ہیں تو در حقیقت کیا آ جاتا ہے؟ 6 جنوری آ جاتی ہے. کرسمس کی آرائش میں کرسمس ٹری بہت مقبول و معروف ہے. دنیا بھر میں لوگ کرسمس ٹری سجاتے ہیں، جس کا آغاز سب سے پہلے مقدس بونیفیس نے کیا. تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ماند پڑ گیا. اس کا ذکر ہمیں خدا کے کلام بائبل مقدس سے نہیں ملتا، لیکن اس کے آغاز کے بارے میں بالکل ایگزیکٹ جاننا تو مشکل ہے. لیکن اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. ان میں سے پہلی یہ ہے کہ مصری قوم اپنے مذہبی جو رسومات تھی اس میں استعمال کرتے تھے. رومی جو تھے وہ اپنے گھروں کو سجانے کے لیے استعمال کرتے تھے. شمالی یورپین کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ بدروہوں سے بچانے
का एक तरीका है और सर्दियों के मौसम में ये एक ज़िंदगी का निशान है, तो मुख्तलिफ पस मंज़र में इसको अच्छा समझा जाता है। जब हम तारीख़ के औराक को देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पेगनिज़म यानी बुत परस्ती में क्रिसमस ट्री का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इसी तरीक़ेकार को मसीहों ने भी अपना लिया। तो क्रिसमस ट्री की तारीख़ जो कि 16वीं सदी से शुरू हुई, वहाँ पे 16वीं सदी में जर्मन के लोगों ने अपने घरों में दरख्तों को लगाना शुरू किया। एवरग्रीन ट्री को उन्होंने फलों से सजाना शुरू किया, और कौन से फल? ख़ास तौर पर सेब के फल से। और वो सेब के फल को ही क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? क्योंकि बाग़ अदन में उन्होंने देखा कि सेब जो था एक ममनू फल था, और उन्होंने इस फल को ही इस्तेमाल किया ताकि वो अपनी अबदी ज़िंदगी को संवारते रहें, ताकि वो जैसे जैसे सेब को देखें उन्हें याद आता रहे कि एक उन्होंने गुनाह में नहीं दोबारा पड़ना जैसे आदम पड़ गया था। एक और ख़ास बात जो बताना चाहूँगा मैं, मार्टिन लूथर जो कि एक बहुत बड़ा थियोलॉजियन है, एक शब को वो अपने घर जा रहा था, उसने आसमान की तरफ निगाह की और देखा कि क्या ही खूबसूरत सितारे हैं जो आसमान को और दोबारा उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। और उसने सोचा क्यों ना मैं आज घर जाऊं और उस क्रिसमस ट्री को जो मेरे घर में मौजूद है उसको भी इसी तरह सजाऊं जिस तरह आसमान सितारों से। और उसने अपने क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए कैंडल्स का इस्तेमाल किया। लेकिन ये जर्मन से दूसरे इलाकों में कैसे फैला, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है जो हमें जानना ज़रूरी है। और जर्मन का एक प्रिंस था, मलका बरतानिया से एल्बर्ट ने शादी की, और वो जर्मन से क्रिसमस ट्री का ये कंसेप्ट लेके गया यूके में। और फिर यूके जो भी तरीक़ेकार अपनाता था, जो भी रवैया अपनाता था, जो भी ट्रेडिशन वो अपनाता था, वो पूरी दुनिया में फैल जाती थी। और जब मलका बरतानिया ने क्रिसमस ट्री को राइज करना शुरू किया तो पूरी दुनिया ने इस कंसेप्ट को अपनाया, और यही कंसेप्ट आज हम तक ऐसे ही पहुंचा। सांता क्लॉज का किरदार हर खास आम का पसंदीदा किरदार है। क्रिसमस के मौके पर बच्चे बड़े सांता कॉस्ट्यूम इस्तेमाल करते हुए तोहफ़े तकसीम करते नजर आते हैं। मगरबी मसीहत का एक अफसानवी किरदार है जो कि अपनी मेहरबानी रहम दिली की वजह से मशहूर है, और ये ख़ास तौर पर बच्चों को तोहफे देने के लिए मशहूर है। और इसके बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ मशहूर, इनमें से एक ये है कि इसने एक दफ़ा 3 बेटियों को जो यानी प्रोस्टिट्यूशन से बचाने के लिए इसने खिड़कियों में से सोने के जो पैकेट्स थे फेंके थे और उनको बचाया, तो इस लिहाज से ये मशहूर है। सेंटा क्लॉज 4वीं सदी में एक आदमी था, और वो आजकल का जो तुर्की है वहाँ पे वो रहाइश पजीर था। और उसमें एक कदर जो मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत अहम थी, जो कि आजकल के मसीहियों में होनी चाहिए। वो क्या थी? एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और गरीबों का ख़ास ख्याल रखना। और इसकी इस कदर को देखते हुए उसकी आज भी हमें ज़रूरत है, और हम उसके नाम को आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सेंट निकोलस तो नहीं हम कह रहे, हम सेंटा क्लॉज कह रहे हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ उसका नाम तब्दील होते होते सेंटा क्लॉज हमारे पास पहुंचा। और उसकी कदर क्या खूबसूरत थी। उसकी कदर जो हमें पसंद है वो ये थी कि वो गरीबों से प्यार करता था। उसने कुछ सिक्कों का सोने के सिक्कों को इकट्ठा किया, एक कपड़े में रैप किया उसे, और चुपके से खिड़की से उनके घर में रख दिया, और उस गरीब आदमी ने अपनी बेटियों की शादी कर ली। और इसी रवायत को डच लोग यानी हॉलैंड के जो लोग हैं उन्होंने अपनाया, और उन्होंने सेंट निकोलस को इस सेंट का दर्जा दे दिया। बहुत ज़रूरी है कि हम क्रिसमस की खुशियों को मनाते हुए इसके असल मफ़हूम को समझें। क्रिसमस को इंतहाई शुक्रगुजारी और मोहब्बत के साथ मनाने और ममनुआ अफ़वाल यानी शराब नोशी, नाच रंग वगैरह से दूर रहने की ज़रूरत है। मसीह की इबादत करते हुए हमें क्रिसमस मनाना चाहिए। जब हम इबादत की बात करते हैं तो इबादत के मुख्तलिफ जुज़ हैं। इबादत में हम हम्दो सना करते हैं, हम दुआ करते हैं, हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत करते हैं। और जब हम बाइबल मुक़द्दस को बग़ौर पढ़ते हैं तो मसीह की आमद पर, मसीह की पैदाइश पर फरिश्तों ने नगमा सराई की, हम्दो सना की। और फिर हम देखते हैं आगे चल के मजूसियों ने सिजदा किया। ये भी इबादत का एक ख़ास जुज़ है, यानी कि मसीह की इबादत में
हमें क्रिसमस को मनाना है। क्रिसमस का दरअसल मकसद यही है कि मसीह की इबादत करें, उसकी हम्दो सना करें। और हम ऐसे मौका पे देखते हैं कि लोग कैरल सिंगिंग करते हैं, मसीह की हम्दो सना करते हैं, कलाम मुक़द्दस सुनाया जाता है और लोगों को मसीह की खुशखबरी का पैगाम दिया जाता है। जैसा हम मत्ती की इंजील में देखते हैं, लिखा है कि उसका नाम इमानुएल होगा, यानी खुदा हमारे साथ। जब खुदा हमारे साथ है तो हम क्यों ना खुशी मनाएं। ये शादमानी का मौका है और चाहिए कि हम उस खुशी को खुद तक महदूद ना रखें, बल्कि हर एक जो हमारे आसपास है, हमारे गिर्द है, जहां तक हमारी रसाई हो सकती है, हम उस खुशी की बशारत को फैला दें। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सी ऐसी आयात मौजूद हैं जो बयान करती हैं कि शराब में मतवाले ना बनो, नशाबाजी ना करो, नशाबाज खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। इसलिए इस बात को समझना और जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्रिसमस के मौका पर हमें खुशी मनानी चाहिए। खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने अपने बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा उनका कलाम हमें बताता है, इमसाल में मैं मस्खरा करती है और शराब बंदे को ख़राब करती है। यानी खुदावंद का कलाम ये फरमाता है और वो दनाई के उल्ट चलना सिखाती है। इसलिए बुनियादी तौर पर शराब पीना खुदावंद के कलाम के मुताबिक मरगूब नहीं। जब हम क्रिसमस के मौका पर तोहफ़े देने की बात करते हैं तो इसकी दरअसल रूट जड़ जो है वो ये है कि मजूसी जो हैं वो मसीह के लिए तोहफ़े लेके आए। क्रिसमस के मौका पर दरअसल दूसरों को गिफ्ट देना ये एक बड़ी अच्छी रवायत है, बात है और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक है। जब हम देखते हैं कि गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को गिफ्ट दिए जाते हैं, लोगों को शामिल किया जाता है क्रिसमस के मौका पर कि वो अच्छा खाना खा सकें, वो अच्छे कपड़े पहन सकें। इसलिए क्रिसमस का दरअसल मकसद शेयरिंग है, बांटना है, दूसरों की मदद करना है। और किताब मुक़द्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। खुदा की तरफ से मसीह की कुर्बानी इंसान के लिए अजीम तरीन तोहफा। तो जब खुदा ने गुनाहगार इंसान की जिंदगी को बचाने के लिए, और न सिर्फ गुनाहगार इंसान की जिंदगी को बचाने के लिए बल्कि कुल कायनात को दुख और करब से निकालने के लिए इतना अजीम तोहफा बख्श दिया, तो इंसान के लिए क्यों कर ये लाजिम नहीं कि वो दूसरों के साथ तोहफ़े बांटे। इसके साथ जब हम देखते हैं तो इंसान तोहफा लेना तो जानता है। हम अक्सर उसका तोहफा लेना चाहते हैं लेकिन तोहफा देने से गुरेज करते हैं। खुदा ने हमें इतना अजीम तोहफा दिया, क्यों हम दूसरों को तोहफा देने से गुरेजा होते हैं। खुदा के कलाम में याकूब के खत में यूं लिखा है कि अगर कोई भाई जरूरतमंद हो, उसको कमी हो, और आप उससे कहते हैं कि जा गरम रह, सैर रह, और उसकी कोई मदद हकीकी तौर पर करते नहीं और सिर्फ उसको दुआ का दिलासा देकर रुखसत कर देते हैं, तो मतलब है कि आप ईमान और अमल में मुताबिकत नहीं रखते। मनजी आलम, मुख्तार दो आलम, मसीह खुदा ताला का बेटा पैदा हो चुका था। अब सवाल यह है कि तजस्सुमुल मसीह से मुराद क्या है और इसका बुनियादी मकसद क्या था। तजस्सुम का बुनियादी मकसद मेरी नज़र में वो ये है कि खुदा ने जब इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया, तो खुदा ने ये मुमकिन कर दिया कि वक्त आने पर खुदा भी इंसान की सूरत इख्तियार कर सके। यीशु मसीह ने तजस्सुम इख्तियार नहीं किया, यीशु मसीह ने तजस्सुम इख्तियार किया है। तजस्सुम अल मसीह के मायने जिस्म इख्तियार करना या जिस्म में ज़ाहिर होना, इनकारनेशन। तजस्सुम
किसी शख्सियत का जो ना जिस्म है ना जिस्मानी है, जिस्म में ज़ाहिर होना तजस्सुम है। तजस्सुम अल मसीह हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं कि ये उतार हुआ है, क्योंकि उतार होना जो है बाज़ लोग इसको इस तरह से भी अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन मसीह का उतार नहीं हुआ बल्कि मसीह ने जिस्म इख्तियार किया है। दूसरा यूहन्ना पहला बाब, जब हम उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा देखते हैं, वहाँ पर मुकद्दस यूहन्ना रसूल बड़ी वज़ाहत और सफाई से इस आर्यनिज़म की बिदत के ख़िलाफ़ बात करते हुए नज़र आते हैं। और कलीसिया के आगाज़ से बहुत से लोग, जैसे मैंने बताया, तजस्सुम के कायल नहीं थे, और यूहन्ना रसूल एक बहुत बड़ी बिदत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और तजस्सुम से इनकार के हक़ में जो वो दलील पेश करते थे उस वक्त के सिकंदरिया के नास्तिक जो फ़िरक़ों के लोग थे, जो अफलातून के फ़लसफ़े से मुतासर थे, वो ये दलील पेश करते थे कि मादा धोखा है, बल्कि सारी चीज़ें महज नकल हैं और किसी चीज़ का कोई हकीकी वजूद है ही नहीं और सब कुछ नेस्ती ही नेस्ती है। लिहाजा वो कहते जब किसी चीज़ का हकीकी वजूद नहीं तो मसीह किस तरह मुजस्सम हो सकता है। तो यूहन्ना रसूल इस बात पर बाकायदा यूहन्ना का पहला बाब पहली आयत मुकद्दसा में कहते हैं कि हमने उससे सुना, हमने उससे देखा, हमने उससे छुआ। हालेलुया। वो तजस्सुम इख्तियार करके आया, जिस्म इख्तियार करके आया, उसका तजस्सुम हुआ है और उसने जिस्म इख्तियार किया और हमने उससे छुआ, इसलिए उसकी गवाही देते हैं। मसीह मखलूक में पहला नहीं बल्कि वो तमाम मखलूक से पहले है। इसके लिए यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान जो है वो पहला बाब और उसकी पहली आयत में यूं मरकूम है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। सो सारी दुनिया का एक ही खुदा है और वही खुदा जो है वो जिस्म इख्तियार करके इंसान की निजात के लिए, इंसान की खैर व आफियत और सलामती और रिहाई और भलाई के लिए इस दुनिया में आए हैं। सो खुदा रूह है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और हम जानते हैं कि रूह के ना गोश्त है, ना हड्डी है, और ना रूह के अंदर ब्लड होता है, खून होता है। सो कफ़ारे के लिए खून का होना लाजमी होता है। और इंसानों में से जितने भी आदम से लेके दुनिया में लोग आए, चाहे वो अंबिया थे, चाहे वो रुसल थे, उनमें से कोई भी इंसान ऐसा ना था कि जो इंसान के गुनाहों का कफ़ारा दे सके। सो इसलिए खुदा खुद इंसान बन गया ताकि वो बनी नौ इंसान का कामिल कफ़ारा बन सके। बैतलहम की चरनी में मौलूद मुकद्दस की पैदाइश से बनी नौ इंसान के लिए राह नजात मुहैया कर दी गई थी। मसीहों को ये बात याद रखनी चाहिए कि अब उनको किसी भी और शख्स, रसूल, नबी या पैगंबर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कौम इसराइल में से जब खुदा नबी बर्पा करता तो वो अपनी मखसूस मुद्दत के बाद मर जाते, फिर खुदा और लोगों को भेज देता था। अब की बार एक ऐसा अजीम नबी आया था जो नबी से कहीं बढ़कर था। वो खुदा में से खुदा और नूर में से नूर था। ये नबी जमीन पर आया, मौत इसको भी आई, लेकिन ये मौत और कब्र को शिकस्त देकर जिंदा हो गया। जिंदा के होते हुए दीगर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मसीह खुदावन में अहद अतीक की तमाम पेशनगोइयों और नबूवतों की तकमील हो चुकी है। खुदा आप सबको मसीह के आने के मकसद में शामिल करके निजात हासिल करने का फज़ल अता फरमाए। आमीन।